Good morning, dear students. Today we are going to start Unit 2 of your syllabus. In that, one of the part is, or the C part is soil chemistry. In that, first and second part, for the first part is separation methods, second part is fertilizer, and the C part is soil chemistry. All the three parts are not correlated to each other, so that's why uh, we are starting with the easiest one, that is soil chemistry. Now in this soil chemistry, when we say soil, it is nothing but the outer layer of the earth crust, which is usually unconsolidated. It is ranging in thickness from a mere film to a maximum somewhat more than a foot, which differs from the material beneath and usually unconsolidated in the color, texture, physical constitution, chemical combination, composition, biological characteristics, and many more things and many more reactions related to it. Now there are so many definitions related to soil are there. So I have given you the simple one. Okay. Now when we say soil, so naturally everywhere the soil is not similar. When we talk about India, the in India also uh, there is a variation in soil. Like in northern side, the soil is different. South side, the soil is different. In western, eastern portion, all where the soil variations can be seen. So when we say soil variations are there or soil variety is there, that means soil is classified. It's not similar everywhere. So that's why it is a compulsion or it is necessary or mandatory to classify the soil as per the nature of soil. It is based on, as it's a natural body, it has to be measured quantitatively, either in field, laboratory, or the nomenclature we can employ it. Okay. Now when we say the soil classification or variation, it is nothing but soil classification. This is called as, in today's language or in science language, we say it as soil taxonomy. What we say? Soil taxonomy. Now soil taxonomy is nothing but the classification of soil. Okay. When we classify the soil, it is this taxonomic classification is based on so many categories like order, suborder, grade group, subgroup, families, series. Okay. So on the basis of order, we will see variety of soils on which the soils can be divided. The first one is antisoils. Now when we say antisol, इस सॉइल का स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पॉइंट वाइज दिए हुए हैं. अब इसमें ये जो सॉइल जो होते हैं, इनमें जो डेवलपमेंट्स होते हैं, यानी कि पोर्स जो होते हैं, वो पोरस तो होती ही है, और नेचुरल जो जेनेरिक हॉरिजन है या नेचुरल जो मटेरियल्स होते हैं, वो उसमें इतने ज़्यादा डेवलप नहीं होते. ठीक है. सिमिलरली ये जो सॉइल है बहुत सारी वैरायटी ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशंस में पाई जाती है. मतलब आपको वेट जो क्लाइमेटिक कंडीशन होगा या मॉइस्ट क्लाइमेटिक कंडीशन होगा, वहाँ भी पाई जा सकती है, और जहाँ ड्राई है वहाँ भी उस क्लाइमेटिक कंडीशन में भी ये सॉइल पाई जाती है. बट मोस्टली ये डेजर्ट्स में ये सॉइल अवेलेबल या देखी जा सकती है. अब इनकी प्रोडक्टिविटी कैसी होती है? ये जो सॉइल होती है, इनकी प्रोडक्टिविटी जो होती है वो वैरायटी है, मतलब लोकेशंस के हिसाब से इनकी प्रॉपर्टीज़ और जो प्रोडक्टिविटी है वो वेरी होती है. इसमें वाटर सप्लाई लिमिटेड रिक्वायर्ड रहता है, मतलब बहुत ज़्यादा वाटर सप्लाई नहीं रिक्वायर्ड रहता. इसमें प्रॉपर फर्टिलाइजेशन अगर हो रहा होगा या आप मैन्योरिंग और फर्टिलाइजर्स का सप्लाई प्रॉपर देंगे तो इसकी प्रोडक्टिविटी गुड रहती है. यानी कि यील्ड जो होगा, आपको सॉइल से मिलने वाला यील्ड है या प्रोडक्ट है, फाइनल प्रोडक्ट जो मिलेगा, दैट विल बी गुड. सो ये जो वैरायटी है, आप वेरियस वेजिटेबल्स जैसे ग्राउंड नट्स है, सिट्रस है प्रोडक्ट्स, या फिर वीट है,
पैडी है, इन सब को उगाने में इस सॉइल का बड़ा योगदान हो सकता है. सो वेर एवर दिस एंटी सोल वैरायटी इज़ देयर और ऑर्डर इज़ देयर, इस टाइप की कैटेगरी ऑफ सॉइल अगर दिखती है तो उसमें आप वेजिटेबल्स और इस तरह के जो अभी डिस्क्राइब किए हैं मैंने उस तरह के यहाँ लगाए जा सकते हैं. सॉइल में वेजिटेबल्स, सिट्रस प्रोडक्ट्स वगैरह हम प्राप्त कर सकते हैं. ठीक है. नाउ द सेकेंड टाइप इज़ वर्टिसोल. जो सेकेंड ऑर्डर है या सेकेंड वैरायटी है सॉइल की वो है वर्टिसोल. ये जो सॉइल है बहुत ही वेटी रहती है. ठीक है. वेटी मीन्स बहुत ज़्यादा इसमें क्ले पार्टिकल्स होते हैं. इसमें हाई कंटेंट ऑफ क्ले पार्टिकल्स होने की वजह से मोस्टली 30% ऑफ जो स्वेलिंग रहती है वो क्ले की वजह से होती है. और कभी कभी जो क्ले का डेप्थ है वो नियर अबाउट 1 मीटर से भी ज़्यादा रह सकता है. तो ऐसी कंडीशन में अगर आप ड्राई सीजन में देखोगे तो ये सॉइल जो है कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है क्योंकि उसका मॉइस्चर ख़त्म हो जाएगा. ठीक है. उस वजह से क्या होता है, ये जो सॉइल है इसमें क्रैक्स, डीप क्रैक्स आते हैं. और जब वेट सीज़न होता है तो इस तरह के क्रैक्स जो है डिसअपियर हो जाते हैं आफ्टर इरिगेशन. ठीक है. ये कहाँ कहाँ पाई जाती है? मोस्टली सेमी एरिड या सब ह्यूमिड जो क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं, जैसे कोस्टल एरियाज़ वगैरह जो होते हैं उस तरह के पोर्शंस में भी पाया जा सकता है. इवन चंद्रपुर जैसे प्लेस में भी जहाँ मॉडरेट या हाई टेम्परेचर्स हों, ऐसी कंडीशन में भी चंद्रपुर में तो वर्टिसोल नहीं है, बट इस तरह के जो लैंड्स हैं जहाँ बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर है वहाँ ये इस तरह की कैटेगरी की सॉइल पाई जा सकती है. ठीक है. ये जो सॉइल है क्रॉप प्रोडक्शन के लिए बहुत अच्छी है. फाइन टेक्सचर रहती है क्योंकि इसमें क्ले रहता है. वो प्लास्टिक और स्टिकी रहेगी जब वो वेट होती है और हार्ड रहेगी जब वो ड्राई होती है. तो दोनों ड्रॉबैक्स और पॉजिटिव्स इसमें हैं. ठीक है. उसको अगर हम मैनेज कर लेते हैं, दैट मीन्स वी कैन ईजिली गेट अ गुड क्रॉप प्रोडक्शन फ्रॉम दिस टाइप ऑफ सॉइल. नाउ इट्स मैनेजमेंट इज़ डिफ़िकल्ट. मैंने अभी कहा कि इसे मेंटेन करना अगर आप प्रॉपरली मेंटेन करते हो तो गुड प्रोडक्शन, क्रॉप प्रोडक्शन मिल सकता है. लेकिन इसका मैनेजमेंट जो है, सॉइल मैनेजमेंट, वो कंटिन्यूसली इसमें टिलिंग वगैरह प्रोसेस जो है, प्रिपरेशन जो है सॉइल का सिमेट्रिक रखना, सॉफ्ट रखना, ये जो है टिलिंग प्रोसेस से कंटिन्यू करते रहना पड़ता है. तो इस वजह से सॉइल की जो मैनेजमेंट है उसे मेंटेन करना थोड़ा डिफ़िकल्ट रहता है एंड इट टेक्स टाइम. सो इसमें जो गुड प्रोडक्शन है वो किस किस के हो सकते हैं? कॉटन के हो सकता है, मिलेट, सोरग्राम हो सकता है, वीट है, पैडी है. इस तरह के जो प्रोडक्ट्स हैं इस तरह के सॉइल में उगा सकते हैं. सो दिस इज़ द सेकेंड टाइप ऑफ सॉइल दैट वी हैव सीन टुडे. आई होप यहाँ तक आपको समझ गया होगा. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.